حسینیت نے یزیدیت کو شکست دے دی ہے اور الحمدللہ رب العالمین نظام اسلامی نے مظلوم فلسطینیوں کا بھرپور بدلہ لیا ہے اور دنیا کی نام نہاد سپر طاقتیں کوشش کرتی رہیں لیکن اسلام کا پرچم بلند ہوا۔ رہبر معظم آیت اللہ سید شہید علی خامنہئی نے اپنی شہادت کے ذریعے اسلام کے پرچم کو بلند کیا اور کفار کی ناک رگڑی گئی۔ اس موقع پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے، ریاست محترم نے اور خصوصاً محترم CDF صاحب جناب حافظ عاصم منیر صاحب نے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے جو کردار ادا کیا ہے اس پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے ملک کے ذمہ داروں کی یہ کاوشیں بہترین نتیجہ لائیں۔ عزیزان گرامی، مسجد و امام بارگاہ بقیت اللہ تقریباً 35 سال سے یہاں پر عزاداری برپا کرتی ہے اور الحمدللہ رب العالمین مسجد و امام بارگاہ بقیت اللہ کی مینیجنگ کمیٹی نے بہترین انتظامات کیے ہیں اور ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ایک سسٹم کے ذریعے چیزوں کو آگے بڑھایا جائے۔ کچھ عرصے پہلے مسجد بقیت اللہ پر کچھ ایسے مسائل مسلط کرنے کی کوشش کی گئی جس کا بیان یہاں پر مناسب نہیں ہے۔ الحمدللہ انتظامیہ نے اس کے فوراً بعد کوششیں کی اور جدید کیمرے لگائے اور سیکیورٹی کے انتظامات کیے تاکہ کسی بھی طریقے سے اگر کوئی ٹیررزم کا واقعہ ہوتا ہے تو اسے روکا جائے۔ مسجد و امام بارگاہ بقیت اللہ کی طرف تھریٹس بہت سے ہم نے ذمہ داروں کو بھی بتایا ہوا تھا، ذمہ داروں نے بھی اپنی کوششیں کی تھیں لیکن بعض جگہ پر چیزیں ناقص ہو رہیں۔ اس وجہ سے آج میں واضح طور پر عرض کرتا چلوں، آفیشیل سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ ایک سوزوکی، تیز رفتار سوزوکی جس کو ہمارے والنٹیئرز نے روکنے کی کوشش کی، اس نے اور سپیڈ دبائی اور عزاداروں پر اس نے چڑھائی کی اور وہ الٹ گئی، جس کی وجہ سے 18 بہنیں بچے اس میں شدید زخمی ہوئے۔ ہماری 2 بیٹیاں چھوٹی، عزادار امام حسین، عزادار جناب سکینہ، آج وینٹیلیٹر پر ہیں۔ ہماری ایک والنٹیئر آج سید الشہداء کو جا کے مل گئی اور دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ واقعے کے ہوتے ہی ہمارے مینیجنگ کمیٹی کے صدر جناب عرفان مہدی بھائی نے فوراً ایمبولینسیں بلائیں اور سرور بھائی اپنی ٹیم کو لے کر ہاسپٹلز پہنچے۔ 1 منٹ کی بھی کہیں کوتاہی نہیں ہوئی ہے اور زخمیوں کو ایمبولینس کے ذریعے فوراً بھیجا گیا۔ سوزوکی والوں کو پکڑ کر رینجرز اور پولیس کے حوالے کیا گیا اور والنٹیئرز کو فوری طور پر منظم کیا گیا اور اشتعال میں آئے ہوئے مومنین کو حوصلہ دیا گیا تاکہ مسجد بقیت اللہ کے اطراف میں خدا نخواستہ کوئی انٹوورڈ واقعہ نہ ہو۔ اور الحمدللہ رب العالمین عرفان مہدی صاحب نے بہترین خدمت کر کے واقعات کو سنبھالا، والنٹیئرز کو سنبھالا۔ میں یہاں پر اس بات کو میں علامہ شہنشاہ نقوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ علامہ شہنشاہ نقوی صاحب خطیب پاکستان، ہم ان کی خدمت میں ہیں۔ میں ان کی اجازت سے چند نکات پیش کر کے اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ یہ بات واضح ہے کہ 1 سیکنڈ کی بھی غفلت نہیں برتی گئی ہے اور کچھ لوگ یہاں پر بھی شرارت کی کوشش کر رہے تھے۔ جب یہاں پر شرارت سے روکا گیا تو انہوں نے سوشل میڈیا میں شرارت کی ہے۔ قوم و ملت خود ان کا حساب لے۔ انتظامیہ کو فوری خبر دی گئی، انتظامیہ فوری حرکت میں آئی۔ ہائی لیول ذمہ داران، چاہے وہ پولیس کے ہوں، چاہے وہ رینجرز کے ہوں، چاہے وہ بیوروکریسی کے ہوں یا حکومت کے ہوں، انہوں نے فوراً رابطہ کیا اور ہمیں اطمینان دلایا کہ انشاءاللہ بہتر انداز میں کام کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، ایک طرف سرور بھائی پوری رات زخمیوں کو دیکھتے رہے، دوسری طرف ہم نے رات کو بیٹھ کر انتظامات کو پھر سے دوسری نظر سے دیکھا اور اس کو چینج کیا اور اب مزید بہتر انتظامات ہوئے۔ تیسری طرف سے ہماری لیگل ٹیم اس کے لیگل اسپیکٹس کو دیکھ رہی تھی اور الحمدللہ رب العالمین بہتر انداز میں چیزیں آگے بڑھیں۔ شیعہ علماء کونسل سندھ کے صدر علامہ اسد اقبال صاحب فوری طور پر اپنی ٹیم کے ساتھ سرور بھائی کے پاس پہنچے، زخمیوں کی عیادت کی اور پوری کوشش کی گئی کہ زخمیوں کو بہترین معالج فراہم کیا جائے۔ صبح 3 بجے بعض زخمیوں کی حالت زیادہ خراب تھی، انہیں آغا خان ہاسپٹل شفٹ کیا گیا۔ چیف منسٹر صاحب اور دوسرے ذمہ داروں نے ہم سے رابطہ کیا اور ہمیں اطمینان دلایا کہ اس واقعے کی شفاف تحقیقات کی جائیں گی تاکہ جو بھی ذمہ دار ہے
जिन्होंने भी हमें सीमेंट के ब्लॉक्स और वो स्टॉप करने वाले फराहम नहीं किए वगैरह वगैरह। फ़िलहाल मैं उसकी जुज़ियात में नहीं जाता, इसलिए कि ख़तीब पाकिस्तान मिंबर पर भी तशरीफ़ ले जाएंगे और वो भी यहाँ पर चंद अल्फाज पेश करेंगे। नमाज फ़जर तक इंतज़ामात पूरे किए, लीगल टीम ने FIR की तैयारी की और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सरवर भाई अपनी टीम के साथ अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम देते रहे। लवाकिन से मुसलसल राब्ते में हैं। अभी शाम तक हम आगा खान हॉस्पिटल में होकर आए हैं। जो हमारी बच्ची शहीद हुई है उनके लवाकिन को पूरा प्रोटोकॉल दिया गया और तशय्ये जनाजा किया गया और इन्हें दफनाया गया। कानूनी कार्रवाई जारी है। FIR बाकायदा तौर पर हमारे वकीलों के मुताबिक काट ली गई है। इस सिलसिले में मैं कराची की मुख्तलिफ तंजीम, क्योंकि बहुत सी तंजीमों ने रब्ता किया, हमसे ताउन के इत्मीनान दिलाया, हमसे ताउन किया, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक ऐसा खूबसूरत माहौल पैदा हुआ कि सुबह 3 बजे तक मुख्तलिफ तंजीम के ज़िम्मेदारान आते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उन्होंने हमारा साथ दिया या हमें इत्मीनान दिलाया। मैं अपनी बक़ीयतुल्लाह मैनेजिंग कमेटी के इरफान मेहदी भाई और बाकी ज़िम्मेदारों का दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं अपनी वॉलंटियर टीम्स पर फ़ख्र करता हूँ कि उन्होंने उस सुज़ुकी को रोकने की कोशिश की और वहाँ पर क्या सिक्योरिटी लैप्स था फ़ेलन मैं यहाँ पर बयान करना मुनासिब नहीं समझता, इसलिए कि हमें इत्मीनान दिलाया है कि इंशाअल्लाह भरपूर तहकीकात करके याद रखिएगा ये वो तहकीकात नहीं होंगी जो 10 साल तक चलेंगी। हम चंद दिन देते हैं तहकीकात करके ज़िम्मेदारों को सामने लाया जाए। मीडिया से दरख्वास्त है, देखें आज के अखबारों में रिपोर्टिंग गलत हुई है। हम पूरी रात सुबह 5 बजे तक यहाँ बैठे हैं। बाज़ मीडिया वाले आए, शुक्रिया। मीडिया में लिखा जा रहा है 11 ज़ख्मी हुए हैं, ड्राइवर नशे में था। आपको वही नाजिल हुई है? आपको ड्राइवरों ने मैसेज किया कि हम नशे में थे? व्हाट्स गोइंग ऑन? व्हाट डू यू वांट? डू यू वांट के तहकीकात का रुख चेंज किया जाए? ये कंप्लीट टेररिज्म एक्ट है और इससे हम एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे कैसे हुआ कि मेरा वॉलंटियर किसी तरह से वो लोहे के बैरियर के जरिए रोकने की कोशिश कर रहा था और उसने और गाड़ी को चेंज किया और पूरी हमारे नए CC कैमरा TV जो इरफान भाई ने नष्ट करवाए हैं और एक एक चीज़ हमने निकाली है। कोई मीडिया प्लीज़ मेरे लहजे को सख्त मत समझिए, मैं अपनी पूरी कौम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। अगर इस वाक़े की जिन्होंने लिखा है कि नशे में था या किसी से उन्होंने रिपोर्ट किया है, प्लीज़ लिख लीजिए कोई नशे में नहीं था, होश में था। बैरियर्स को क्रॉस करता हुआ नशे आदमी नहीं आता, बैरियर्स को ठोक के बेहोश हो जाता है। और 2 नहीं थे, 4 आदमी थे। FIR में सब कुछ लिखा हुआ है। मीडिया वालों और सोशल मीडिया वालों, तुम तो बेलगाम हो गए हो। पूरी पूरी रात वॉलंटियर्स, अभी भी मेरे पास वॉलंटियर्स मौजूद हैं जो 24 घंटे से जागे हुए और खिदमत कर रहे हैं, और एक तुम चला देते हो शोशा कि बक़ीयतुल्लाह वाले गायब हैं। छोड़ दें इन बातों को। बहरहाल मैं फिर आके इस बात को कहता हूँ कि हम इस बात को वाज़ेह तौर पर बयान करते हैं कि जो भी इस वाक़े को गलत रंग देगा हम उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमने लोग पकड़ के ज़िम्मेदारों के हवाले कर दिए हैं, उनकी वीडियोस, उनकी फ़ोटोज़ हमारे पास मौजूद हैं। प्लीज़ सोशल मीडिया की ख़बरों की तरफ तवज्जो न करें। हम आपको वक्तन फ़वक्तन बाकायदा तौर पर सारी चीज़ें बताएंगे। और मैं आखिर में एक बार फिर जनाब चीफ मिनिस्टर साहब का, जनाब नासिर हुसैन शाह साहब का, जिन्होंने शायद कल से अभी तक कम से कम हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 20 मरतबा फ़ोन करके हमसे ताउन किया है। जिना हॉस्पिटल, साउथ सिटी हॉस्पिटल, आगा खान हॉस्पिटल के ज़िम्मेदारों का भरपूर तरीके से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमें सेटिस्फाई किया है और एजेंसीज़, DG रेंजर्स और पुलिस सब ने हमारे साथ ताउन किया है। जो ज़िम्मेदार हैं वो अपनी जगह पर हैं। उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला हमारे पास चीफ मिनिस्टर की फोकल पर्सन तहसीन आबदी साहिबा भी तशरीफ़ फरमा है। इनका भी शुक्रिया कि ये दिन रात राब्ते में रहीं। हमें मुआलजे के लिहाज से, हमें सिक्योरिटी के लिहाज से वाक़े के बाद सेटिस्फाई किया गया है, लेकिन उससे पहले सेटिस्फेक्शन नहीं रही जिसकी तहकीकात अंजाम पाएंगी। उम्मीद है इंशाअल्लाह ये नया साल जो कि आज़ादाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए खून पर शमशीर की कामयाबी का साल है, इस्लाम के परचम के बुलंद होने का साल है, इत्तेहाद और वहदत के आगे बढ़ने का साल है। बकौल कायदे मिल्लत जाफरी आयतुल्लाह सैयद साजिद नकवी साहब कि अब इत्तेहाद और वहदत उस मरहले पर पहुंची है कि कोई भी पाकिस्तान के अंदर नफ़रत अंगेज़ काम नहीं कर सकता। लेकिन सिंध की इंतज़ामिया को मैं मुतनब्बे कर रहा हूँ कि आपने तकफ़ीरियों को जो खुली छूट दी हुई है, तो इंशाअल्लाह अगर आप इस खुली छूट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम चीज़ों को कंट्रोल करना बेहतर अंदाज में जानते हैं। 11 मुहर्रम, खैरपुर, अभी से वार्न कर रहा हूँ, अगर आप इस वार्निंग को सीरियस नहीं लेंगे तो हम अमली इक़दामात करने के हक़ बाकी रखते हैं। सिंध में बाज़ जगहों पर परेशानियाँ हैं।
हमें अभी 1 घंटे पहले इत्मीनान दिलाया है। हमारे बिरादर अजीज यहाँ पर मौजूद हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं, आज़ादारी अनवर भाई मौजूद हैं, आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर इंसान का हक है, कोई नहीं रोक सकता। और पंजाब में जो वाक़यात हुए हैं उसकी भी आज हमें मोहतरम ताहिर अशरफी साहब ने इत्मीनान दिलाया है कि उनकी पूरी लिस्ट उनको मिल गई है। पंजाब की हुकूमत ने इत्मीनान दिलाया है, हम उनका शुक्रिया अदा नहीं करते, हम अमली इक़दामात का इंतज़ार करेंगे, इसलिए कि मुल्क अहले बैत के चाहने वालों का मुल्क है। उम्मीद है इंशाअल्लाह आइंदा सालों में बेहतर इंतज़ामात रहेंगे ताकि एक जान भी न जाए। मैं अल्लामा सैयद शहंशाह हुसैन नकवी साहब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि कल के वाक़े की पहली ख़बर मिलने से लेकर अभी मिंबर पे बैठने से पहले, जहाँ मजलिस पड़ी, मिंबर से उतरने से पहले हर लम्हे हमारे साथ थे। और अल्लाह ताला से दुआ गूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मौलाना शहंशाह साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो भी मस्जिद इमाम बारगाह बक़ियतुल्लाह टीम के कारकर्दगी पर अपनी राय से नवाजें और अपनी राय से पूरी आवाम को मुत्तला करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना शबीर हसन मेसमी हफ़िज़हुल्लाह, जो मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं इस्लामी तहरीक शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान के, उनकी गुफ्तगू के बाद कोई गुफ्तगू बनती नहीं है। मैं बस 2 बातें अर्ज़ करूँ। एक तो अय्याम अज़ा, जो लोग हमें जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो जान लें कि हमारे नज़दीक सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को औलवियत और अहमियत हासिल है वो ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, वो करबला वालों का ज़िक्र है, वो अहले बैत के ज़िक्र की अदायगी और उनसे मोहब्बत का इज़हार है। हम अजर रिसालत की अदायगी क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा के हुक्म पर अमल करते हुए मुहर्रम में, माह रमज़ान में, रबीउल अव्वल में साल भर हर नमाज के बाद इमाम हुसैन को सलाम करते हैं और नबी की आल से प्यार करते हैं। ये काम जो हमें अल्लाह ने अता किया है, जो हमें ज़िम्मेदारी सौंपी है, उस काम में कोई रखना, किसी तरह की क़ुरबानी, किसी तरह के नुकसान, किसी तरह की रुकावट से फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जो कल वाक़या पेश आया, इसमें उस बच्ची के वालिदैन को मैं दोनों हाथों से सलाम, उसकी शिफ़ाअत और उसकी वो जो अज़मत है जो जवारे अहले बैत में पहुँचने से उसे हासिल हो रही है। और इस बच्ची ने, इस ज़ुनैरा ने, इस मेरी बेटी ने एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है कि ख़तीब है, मातम है, अज़ादारी है, मजलिस है, मगर फ़र्श अज़ा पर एक सुन्नी बच्ची शहीद हो रही है। ये ज़ुनैरा, इसने ख़त्म कर दिया, फ़ैसला सुना दिया इस बच्ची ने अपनी जान देकर कि अज़ादारी सय्यिद शुहदा किसी ख़ास मसलक और मकतब की मीरास नहीं है। ये पाकिस्तानियों का हुस्न है, पाकिस्तानियों का इफ्तिखार है, हमारे वतन की एक शान है कि यहाँ मुहर्रम में हिंदू, मुस्लिम, सुन्नी, शिया सब मिलकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इज़हार करते हैं। काम जो जैसा कि मौलाना ने फरमाया, इसके बाद कोई बात बनती नहीं है कि मैं कुछ कहूँ, बस इतना कहूँ क्योंकि मजलिस भी पढ़नी है। ये जो मजमा बाहर आया हुआ है, ये मेरी तकरीर सुनने यानी मेरी मजलिस सुनने के लिए आया है, मुझसे ज़िक्र अहले बैत सुनने आया है। और आज जनाब अली असग़र का मातम है, आज हज़रत इमाम हुसैन के सबसे बड़े मुजाहिद का मातम है, सबसे कम सिन जो सबसे बड़ा मुजाहिद है। अज़ादारी में रुकावट, कभी बम धमाके होते हैं, कभी टारगेट किलिंग होती है, कभी खुद कुछ धमाके होते हैं, कभी मजलिसों पर हमले होते हैं, और कभी पंजाब जैसे सूबे में पुलिस इंतज़ामिया मजलिसों को रोक कर दहशत गर्दों का काम करती है। दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि जो दूसरे सूबों में दहशत गर्द करते होंगे, वहाँ अज़ादारों को हिरासा करके अगर रियासती इदारे ऐसा कर रहे हों तो काबिल मज़म्मत है। सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ का ख़ित्ता कुछ ऐसा ही, यहाँ ताज़िया हिंदू भी बनाता है, यहाँ अलम सुन्नी भी लगाता है, यहाँ हमारा माहौल बहुत अच्छा है। इस माहौल को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि ऐसा कोई वाक़या दोबारा रूनुमा न होने का इंतज़ार नहीं होना चाहिए, बातें नहीं होनी चाहिए। जहाँ कमज़ोरी रह गई उस कमज़ोरी को दूर करें और इज़ाला करें। मैं एक ख़ास कैफियत में हूँ, मैं जब से उस बच्ची का जनाजा देखा है मेरी हालत नागुफ्ताबे है। उसकी माँ से पूछें, उसके बाप से पूछें, उसके घर वालों से पूछें, इतनी प्यारी आपकी भी तो बेटियाँ हैं, आपके घरों में भी तो 7-8 साल की बच्चियाँ हैं, ऐसे कोई बच्ची चली जाए, उस पर कोई गाड़ी चढ़ जाए, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया? मैं बस आपसे इतना कहूँगा कि जो जो इसमें ज़िम्मेदार है उसके साथ तंबीहाना रवैया होना चाहिए। दूसरी बात, इंतज़ार नहीं करें, इंतज़ाम करें। जहाँ जहाँ भी कमज़ोरियाँ हैं, इज्तिमात हो रहे हैं, जहाँ जहाँ भी कमज़ोरियाँ हैं उन कमज़ोरियों को बरतरफ करें। जैसा कि बताया गया, जैसा कि नज़र भी आ रहा है, आज बहुत सारी जगहों पर कमज़ोरियाँ बरतरफ होती नज़र आई हैं। मैं इस पर भी इनको आफरीन और मरहबा बोलूँगा।
बस इतना अर्ज़ करूँगा कि खुदा न खास्ता मेरे मुँह में खाक, अगर ऐसा कोई हादसा वाक़या फिर दोबारा मुल्क में खुदा न खास्ता पेश आए, आज़ादारी मुतासिर नहीं होनी चाहिए, मजलिस बंद नहीं होनी चाहिए। अभी भी मैं आपसे शर्मिंदा हूँ कि हमारा टाइम मजलिस पढ़ने का है और हम इस कौमी मसले के लिए आपके साथ बैठे हुए हैं। माता मुतासिर नहीं होना चाहिए। हमारा गम ही नहीं है, हमारा गम हुसैन के गम में ज़म है। हमारा कोई खुशी का दिन नहीं है, हमारी हर खुशी अहले बैत की खुशी में ज़म है। लिहाजा हमें आशूरा की तरफ बढ़ना है। साल भर इंतज़ार करता है एक मौलाई कि आशूर का दिन आएगा, मैं नबी के नवासे का पुरसा दूंगा। किसी तरह की ऐसी हरकत आशूरा को मुतासिर नहीं करे। ये तकफीरियों को खुली छूट देना सिंध के मुख्तलिफ शहरों में, सबीलों के ऊपर पाबंदियाँ लगाना, ये पंजाब में जो कुछ हो रहा है, ये सब किसी तौर भी हमें गवारा नहीं है, हमें पसंद नहीं है। हम तवक्को करते हैं, दुआ करते हैं और जहाँ बेहतरी आ रही है उनके लिए आफरीन और मरहबा बोलते हैं, जहाँ कमज़ोरियाँ हैं वहाँ मजम्मत करते हैं और इंतज़ार कर रहे हैं उनका कि वो शहरियों के हुकूक़, ये शहरी हुकूक़ का मसला है, ये शहरी हुकूक़ का मसला है। जितना लोग इस वक्त बक़ियतुल्लाह में बैठे हैं बाहर, मैं कितनी दूर से देखता आ रहा हूँ, पार्किंग कितनी दूर तक है, हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग आए हुए हैं। सियासी जमातें इससे 25% मजमा जमा करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है। ये लोग रोड पे बैठे हैं, फुटपाथों पे बैठे हैं, हैसियतों वाले लोग, करोड़पति अरबपति लोग जमीन पर बैठे हुए हैं। किस लिए? ये सियासी जलसा नहीं है, ये इबादत करने आए हैं। तुम इन्हें रोने भी नहीं दे रहे हो, तुम इन्हें मातम भी नहीं करने दे रहे हो, तुम इनके कामों में रुकावट डाल रहे हो। ये जो भी लोग हैं जिन्होंने ऐसे आकर अज़ादारों को मुतासिर किया है, जैसा कि मौलाना ने फरमाया, शफाफ अंदाज से मामलात को आगे बढ़ाया जाए। और न सिर्फ ये बल्कि इंतज़ामिया में भी जिन लोगों की कमज़ोरी कोताही रही, हमें IG साहब, DIG साहब, CM साहब ज़रा ये मंजर भी दिखाएंगे इंशाअल्लाह सिंध के अंदर कि उस अफसर को भी कोई सज़ा मिलनी चाहिए जिसे गुज़िश्ता 3 दिनों से 4 दिनों से कह रहे थे कि भाई ये ऐसा हो सकता है, ये हो जाएगा, यहाँ रुकावट खड़ी करो। एक अगर गाड़ी खड़ी होती और ये गाड़ी उसमें जाके लगती, करोड़ों गाड़ियां कुर्बान इस बच्ची के एक उंगली के ऊपर जो जान देकर चली गई। ये जो अभी इतने लोग जख्मी हैं, लाखों गाड़ियां कुर्बान इन लोगों के जख्मों के ऊपर। ये जान थी, ये जान चली गई। लेकिन इंतजामात में जो कमजोरी रही, मैं बस इतना कहूँगा कि हमें ये मंजर भी दिखाएं, हमारी बहन बैठी हैं, फोकल पर्सन नुमाइंदा बैठी हैं सिंध हुकूमत की, कि ऐसे अफसरान को भी तंबीह होनी चाहिए जिन्हें कहा भी जा रहा था और वो मुतवज्जह नहीं थे। मैं आप सबसे कहूँगा कि आप हौसला, हिम्मत, तदब्बर, हिकमत, दानाई, मामला फहमी, दुश्मनों की साजिश, अपने दरमियान फसाद और फितना फैलाने वालों पर निगाह और खिदमत करने वालों की हौसला अफजाई, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। बक़ियतुल्लाह की कमेटी ने, वर्किंग कमेटी ने, यहाँ के इंतज़ामी मुकम्मल ढांचे ने दिन रात एक की हुई है। मैंने आफरीन, मरहबा, शाबाश कहता हूँ और इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफे के लिए दुआ गो हूँ। जितने भी अहबाब मेरी आवाज़, हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, आप सबसे गुजारिश है, एक सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास, इस मौला हुसैन की परी के नाम, इसके वालिदैन के हौसले के लिए, हिम्मत के लिए और इसके दर्जात की बुलंदी के लिए तिलावत करेंगे। एक आध सवाल हो तो कर लीजिए। मेरा अल्लामा साहब आपसे सवाल है, इजाज़त है साहब जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कि आपने कहा कि फोकल पर्सन बैठी है, पूरी इंतज़ामिया आपके साथ ताउन है, तो क्या आप जो इंतज़ामात हैं आप इनसे क्या मुतमईन नज़र नहीं आ रहे? ऐसा लग रहा है बगैर आपकी दस्तावेज़ पुलिस की कारकर्दगी से हम कल से आज मुतमईन हैं। जो कल तक उनका काम था उससे आज हम पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर महसूस कर रहे हैं। मुतल्लिका पुलिस अफसरान, DIG साहब, एडिशनल IG साहब, इन सब के लिए कि इन्होंने वाकई, ये भी मैंने कल रात को 4 बजे भी DIG साउथ को रब्ता किया तो उन्होंने एक लम्हे में मुझे जवाब दिया है। हमने जब भी रात 3 बजे भी रब्ता किया है तो एडिशनल IG साहब ने फ़ौरन जवाब दिया है। इलाज मुआलजे में भी इनकी तरफ से, FIR के हवाले से भी इनकी तरफ से बहुत अच्छा रवैया है। हम कल की निस्बत आज इनसे, इनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं और अब तवक्को करते हैं कि आइंदा और कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी। बच्ची के कत्ल की दफात इसमें शामिल करवाई जाएंगी या उनकी अहलखाना की मुद्दत में अलग से FIR दर्ज कराई जाएगी? इस पर कोई आपकी अहलखाना से बात हुई है? जी, क्योंकि ये मसाइल मैं देख रहा हूँ इसमें, क्योंकि बच्ची की शहादत FIR के बाद हुई है, इसलिए मस्जिद बक़ियतुल्लाह कमेटी ही इसी को अप्लाई करेगी और FIR को आगे बढ़ाएगी। इस मसले में वालिदैन को हम कोई ज़हमत नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया।
इस सारी सूरत हाल में सिंध हुकूमत क्या कर रही है? यहाँ पर ये सानिया पेश आया तो फौरी तौर पर जो है वो इंतजामिया टाक गई। सिक्योरिटी पे बात कर रहे थे, इंतजाम भी कर रहे थे। अनफॉर्चुनेट वाक़यात हुए। अलामा साहब ने भी बताया कि जिस तरह सिक्योरिटी हमारे पास जो इतला आ रही थी, मैंने खुद क्योंकि विजिट्स किए हैं बहुत ऐसे इमाम बारगाहों पे जो बड़े सेंसिटिव एरियाज़ हैं, गोली मार के और डिफरेंट इस तरह के लाइन्स एरिया के एरियाज जहाँ पे सिक्योरिटी अगर कम थी तो वो हमने और ज़्यादा बढ़ाई है सीएम साहब से रिक्वेस्ट करके। तो सिक्योरिटी अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ इस तरह यकीनन कि कहीं ना कहीं कोताही हुई है और उसके लिए सीएम साहब ने जो है वो फ़ौरन इंस्ट्रक्शन दी थी, क्योंकि हमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से फ़ौरन ही इंस्ट्रक्शन आई थी कि जी जहाँ पे भी लैब सिक्योरिटी लैब्स हुआ है आप फ़ौरन इस चीज़ को एड्रेस करें, आप तमाम मुताल्लिक़ इदारों को ऑन बोर्ड लें और किसकी भी कोताही है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मैं यहाँ पर DHA के जिम्मेदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। रह गया था कि उन्होंने भी इस वाक़े के बाद हमारे साथ वैसे भी ताउन किया, लेकिन इस वाक़े के साथ भरपूर ताउन किया है। DHA विजिलेंस ने हमारे साथ भरपूर ताउन किया है, शुक्रिया अदा करता हूँ।